Hello students, Ritu ma'am here. Students, today we will take our next topic of chemical kinetics, that is the activation energy. Student, activation energy means it is simply the energy which is required to convert a reactant into product. Okay, so we will take it in detail. The simple thing is that when we have a reactant like A2 and B2, when they react together, then they do not directly convert into product. Okay, this is the product, so they do not convert directly into product, बल्कि क्या होता है, there should be formation of an intermediate which is generally unstable and known as the activated complex, and the reactant which can able to convert into activated complex can form product only. Okay, that means if I am taking A2 and B2, then first they will convert into an activated complex like this. That means जो यहाँ A2 है, it can be written as AA, this B2 can be written as BB. तो this bond cannot completely break up और this bond cannot completely make up. Okay, ये पूरी तरह से अभी बन नहीं सकता और ये पूरी तरह से अभी टूट नहीं सकता है, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से बना नहीं है. तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, which is known as the activated complex, and this process is very slow process, and since it is very unstable, then it easily gets converted, very fast process gets converted into AB. This bond break and this bond also break, and the product, that is AB, will be formed. So this is the actual process that a reactant can be converted into product. So students, we can say that a reaction can occur when molecules of reactant colloid with each other. ठीक है, they colloid with each other to form an unstable intermediate, that is activated complex, and this intermediate exists for a very short time. Okay, this, because this is unstable, this exists for a very short time and then breaks up to form a product molecule. This will be the product, to form a product molecule, and the energy required to form this intermediate, here it needs some energy to get converted into this activated complex. So the energy required to form this intermediates is called the activation energy. Okay, so student, अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन बोलूँ इसकी, तो सिंपली यहाँ से क्या जाएगा आपका, इट इज़ द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी. ये क्या है, इट इज़ मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है. एक्स्ट्रा एनर्जी over and above, I am writing over and above the average potential energy, of the reactants, which must be supplied to the reactants to cross over the energy barrier between reactants and products is called activation energy. So this is the actual definition, and this is denoted by EA. This is denoted by EA. This is the actual definition. So here is the word minimum extra energy over and above the average potential energy. इसका मतलब क्या है कि हर रिएक्टेंट की अपनी एक एनर्जी होती है,
उसके पास कुछ एनर्जी होती है जो एवरेज एनर्जी होती है, उसके अलावा जो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी है, सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसके थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखो, रिएक्शन हमारे पास में बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज़ द एक्सोथर्मिक एंड अदर इज़ द एंडोथर्मिक। तो दोनों के लिए ग्राफ में हल्का सा चेंज है। आप चाहे तो सिंपल एक ग्राफ भी बना के दिखा सकते हैं, अदरवाइज मैं दोनों केस लेके चल रही हूँ कि कौन सा रिएक्शन है उसके रेस्पेक्ट में। तो इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दिस इज पोटेंशियल एनर्जी and there is simply progress of reaction। ठीक है, potential energy versus progress of reaction। तो if it is exothermic reaction, if it is exothermic reaction, exothermic reaction का मतलब क्या होता है, डेल्टा H आपकी निगेटिव होगी, यानी एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट, ये जो एनर्जी है दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी हाई एनर्जी होती है उतना ही कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या है, बहुत हाई है, इसीलिए क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ये वाली जो एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी किसकी होगी, EA फॉर फॉरवर्ड, दिस इज फॉर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। ठीक है, दिस इज EA, ये आपकी एक्स्ट्रा वो मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है, इतनी तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ही जो हर रिएक्टेंट के पास होती है अपनी कुछ स्पेसिफिक। और ये हमारी क्या है, EA, डैट मीन्स आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब यहाँ जो आपका ये बैकवर्ड के लिए जो आएगा ये एनर्जी EA, that is for backward reaction, okay, this is for backward reaction। so what will be the delta H, यहाँ से delta H क्या आ जाएगा आपका, EA for forward reaction minus EA for backward reaction। तो यहाँ से आप देख लीजिए बैकवर्ड क्या है, ज़्यादा है, फॉरवर्ड से ज़्यादा है, तो ये हमारा निगेटिव आएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो गया। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बेटा जो ये एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको इन शॉर्ट बोलूँ कि ये क्या चीज़ है, तो ये सिंपली थ्रेशोल्ड एनर्जी, अभी मैं बताऊँगी आपको इसका मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी है। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट से इस नीचे जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इस मिनिमम एनर्जी से ये जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। आप चाहे तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, दिस इज़ ET। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ET माइनस E एवरेज, दिस इज़ E एवरेज। तो E एवरेज तो अपनी सबके पास होती है, तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ मैंने आपको 2 फॉर्म में बता दी है कि फॉरवर्ड की भी है और बैकवर्ड की भी है। तो अगर हमारे पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके रेस्पेक्ट में ये निगेटिव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा केस ले रही हूँ। अगर मेरे पास में क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो बिल्कुल सिंपल, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यहाँ अब ग्राफ देख लीजिए कैसा आएगा। अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए,
जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए फॉरवर्ड से, यानी जो आपका डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो दिस इज अगेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सबसे हाई एनर्जी पे होगा, ठीक है। और यहाँ से दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, ओके, एंड this is the EA for backward and this is EA for forward, okay. This is in journal EA and rest the same thing, that is the threshold energy and the average energy. तो दिस इज़ द सेकेंड केस, दैट इज़ द एंडोथर्मिक। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या होना चाहिए, डेल्टा एच शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप ग्राफ से एक बार चेक कर लीजिए कि क्या पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से डेल्टा एच हमारा क्या होगा, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये तो अगर आपसे सेपरेट पूछा जाएगा एक्सोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए, तब आपको बताना है। अदरवाइज़ आप सिंपली एक ही ग्राफ बना सकते हो जिसमें आपको ये सब भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बताना है आपको, और ये पॉइंट को ई ए आपको शो करके दिखा देना है, यानी फॉरवर्ड वाला जो है उसके रेस्पेक्ट में आपको शो करके दिखा देना है कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इन जनरल जो हम लेके चलते हैं वो फॉरवर्ड के रेस्पेक्ट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। नाउ स्टूडेंट इसी में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ द आर्हेनियस इक्वेशन, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो बेटा, जो हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। काइनेटिक्स चैप्टर अपने आप में न्यूमेरिकल के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। तो दिस इक्वेशन इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि टेम्परेचर का किसी केमिकल रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी हुई है जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, के डेट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। यहाँ क्या है, वेयर के वी ऑल नो इट इज़ रेट कांस्टेंट। पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है तो आई थिंक सबको क्लियर है ये चीज़। ए क्या है, इट इज़ आर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ नॉन एज द आर्हेनियस कांस्टेंट, और एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले है तो इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। और एक और नाम है इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। पर जो ज़्यादा इसको बोला जाता है वो आर्हेनियस कांस्टेंट से ही इसको जानते हैं। देन ई ए अभी पढ़ा है, इट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। एंड व्हाट इज़ आर, वी ऑल नो इट इज़ अ गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 होती है जूल्स में। एंड टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन, ओके, ये ध्यान रखना, इट इज़ इन केल्विन। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर आर्हेनियस इक्वेशन लिया है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यहाँ से हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसको बेसिकली हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं log लूँगी इसका, तो log के बेस ई में रहेगा, यानी ln है ये। आप सिंपली ln भी लिख सकते हो, बहुत बार मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि ln लिख दीजिए या log बेस ई लिख दीजिए, वो एक ही चीज़ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो log ई ए माइनस दिस इज log ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ आपका ये बेस ई है और ई के रेस्पेक्ट में ही है। तो पहली चीज़ तो ए टू द पावर एक्स की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए, सॉरी दिस इज प्लस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, ये
राइट। अब जब भी ऐसा होगा कि बेस और यहाँ जो टर्म है ये सेम होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, log EA माइनस EA अपॉन RT इंटू 1। तो फिर फाइनली हमारा यहाँ से क्या आ गया, log 20 के log EA माइनस EA अपॉन RT। ओके, दिस इज इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन आपको किस तरह की नज़र आ रही है। इट इज़ लाइक y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन है। तो इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन y एंड x, y क्या है यहाँ पे ln k यानी log बेस e k, और x क्या है हमारा यहाँ, x क्या चीज़ है, EA। देखिए हर रिएक्शन के लिए अपना कांस्टेंट होता है, R की वैल्यू आपको पता ही है 8.314 इन जूल्स होती है। तो यहाँ 1/t वेरिएबल है, तो उसके बीच में अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ तो यहाँ निगेटिव स्लोप हो गया, तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, दिस इज इंटरसेप्ट C। तो ये हमारा क्या हो गया, log बेस EA, और स्लोप क्या आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए, m की वैल्यू क्या दिख रही है, माइनस EA अपॉन R। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये एक ग्राफ आ जाएगा अगर आपके पास में इस तरह की कोई इक्वेशन दी हुई है, देन विद द हेल्प ऑफ स्लोप वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नाउ वी टेक टू कंडीशंस, वी हैव टू टेम्परेचर T1 एंड T2, और दोनों के रेस्पेक्ट में हमने पहले भी पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो लेट वी हैव टू टेम्परेचर, temperature T1, let at temperature T1 rate constant कितना है हमारा K1, and at T2 let rate constant is K2। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो वी विल गेट टू इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी विल गेट टू इक्वेशन, log K1 बेस E है, log बेस EA माइनस EA अपॉन RT1। ओके, दिस इज इक्वेशन 3। एंड इन द सेम वे ये जो आरइनएस कांस्टेंट है ये भी रिएक्शन पे डिपेंड करता है, हर रिएक्शन के रेस्पेक्ट में इसकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आगे बेटा यहाँ पे। तो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, तो log बेस E K2 माइनस log बेस E K1 इक्वल्स टू, सिंपल डेरिवेशन, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें। ये वाला टर्म ये आपका माइनस हो जाएगा और ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। log A माइनस log B वी कैन राइट एज log A अपॉन B। ओके, log A माइनस log B वी कैन राइट log A अपॉन B। एंड यहाँ से EA हमने कॉमन ले लिया, RB कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा 1/T1 माइनस 1/T2। ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई हमारे पास, तो वी विल गेट EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, अब पहले भी कई बार बता चुकी हूँ मैं ये कि आपका जब भी log बेस E रहता है वी हैव टू कन्वर्ट इनटू log बेस 10, क्योंकि जो log टेबल है वो विद रेस्पेक्ट टू log बेस 10 दिया हुआ है, तो वी कैन राइट इट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंपली 1/T1 के माइनस 1/T2 रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन log बेस 10 K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, दिस इज T2 माइनस T1 एंड T1 T2। सो दिस इज़ द फाइनल डेरिवेशन। ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम फटाफट। तो वी हैव ए न्यूमेरिकल
it is the rate of reaction quadruple, rate of reaction quadruple when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. Okay student, we have this question. अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको गिवन है वो लिख लीजिए. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? वी हैव द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल. ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन यानी हमारा जो रेट है वो क्वाड्रपल हो जा रहा है. जो K2 है ये फर्स्ट रेट कांस्टेंट का क्वाड्रपल का मतलब 4 टाइम्स हो जा रहा है. ठीक है, देन व्हाट इज T1? T1 कितना है? 293 केल्विन. ऑलरेडी केल्विन में दिया है, अगर केल्विन में ना दिया हो तो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू केल्विन. देन T2 इज 313 केल्विन. आर मैंने आपको बोला है कि हमेशा जूल में लेके चलना है इस फॉर्मूले के लिए, जूल पर केल्विन पर मोल. ओके, नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला जो अभी हमने आर्हेनियस इक्वेशन से डिराइव किया है. T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? log base 10. दिस इज 4 टाइम्स. ओके, EA अपॉन 2.303 R. यहाँ क्या आ जाएगा? 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293. इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं. ये कैंसिल हो जाएगा. log base 10 4 EA अपॉन पुटिंग द वैल्यूज़ 8.314. यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0 2 दिस इज 20. ओके, 313 इंटू 293. इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू log 10. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आगे सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है. आपको कैलकुलेट करना है, वो आप कर ही लेंगे. ठीक है, ये सिंपली इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है. 0.3010 होती है. एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, हम एग्ज़ाम में बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के इसमें पड़ जाते हैं. हमेशा याद रखिए, इसको एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, इनके साथ ये आपको हर आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपका आएगा. तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखिए, इट इज़ 19.14. तो ये याद रख लीजिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी. ये 19.14 होता है. बस बाकी आपने सिर्फ कैलकुलेट करना है. यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो ये आपका 5285 आता है जूल पर मोल. ठीक है, जूल पर मोल इज़ द यूनिट. और अगर इसको हम 59 किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 52859 किलो जूल पर मोल आ जाएगा. ठीक है बेटा, तो यहाँ से इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया. इस तरह से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और बच्चे कैलकुलेशन छोड़ देते हैं. तो ये एक सिंपल सी चीज़ है. ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि इसको एक दूसरे से नहीं करना, इसको हमेशा एक साथ करना. और ये हमेशा याद रखो 19.14 आएगी इसकी वैल्यू, तो वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है. अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, वो भी हम लोग कर लेते हैं इसी वीडियो में. तो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम लोग एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होते हैं? जब उनके बीच में कोलिजन होता है, यानी कोलाइड करेंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लेविस. ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी. तो इस थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये थ्योरी है आपकी. तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड बिफोर द रिएक्शन कैन अकर. जो मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनमें आपस में अगर कोलिजन नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. तो यानी उनमें क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए. अब ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या कंसीडर किया कि जो आपके रिएक्टेंट हैं इन्होंने क्या कंसीडर किया? दे अज्यूमिंग रिएक्टेंट एज हार्ड स्फीयर. ठीक है,
इन्होंने क्या एज्यूम किया कि जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर हार्ड स्फीयर। तो अगर हमारी कोई भी एक इस तरह की इक्वेशन है a प्लस बी जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों हार्ड स्फीयर है, तो ये आपस में कॉलोइड करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से और तब आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया दैट इज़ द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन्होंने जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी विच इज़ डिनोटेड बाय ZAB, अगर मेरी बायोमोलिकुलर इक्वेशन है AB टाइप की तो यहाँ Z इज़ द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और अगर AB के बीच में हो रहा है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ZAB। इससे रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ इसको। तो द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, इट इज़ सिंपली द, ये क्या चीज़ है, इट इज़ द नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, कि क्योंकि कॉलिजन पे डिपेंड करते हैं तो वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे, ये उन्होंने बोला। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, यही कॉलिजन थ्योरी है बेसिकली। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने बोला कि जो भी हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन की। तो जो इन्होंने ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया, ये e⁻ अपॉन RT से किया। ठीक है, किससे किया है, e⁻ अपॉन RT। ये क्या है बेसिकली, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये इन्होंने क्या बोला कि K जो है रेट कांस्टेंट वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट, उन्होंने क्या बोला कि देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ए कॉलिजन। अब इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि कॉलिजन ऐसा नहीं कि कहीं भी हो जाएगा, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कॉलिजन ये नहीं है कि किसी भी तरह से के अरेंजमेंट में पॉसिबल है, बल्कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही पॉसिबल होगा जो रिएक्टेंट का होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ आई हैव CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड, अगर मैं यहाँ हाइड्रोक्साइड आयंस का रिएक्शन कर रही हूँ तो जो प्रोडक्ट बनता है CH3OH Br-, ये बनता है प्रोडक्ट। अब यहाँ हमारा ओरिएंटेशन को लेके मैं दो केस आपको बता रही हूँ। प्रॉपर ओरिएंटेशन से मतलब क्या है और इम्प्रॉपर से मतलब क्या है। अगर यहाँ इस तरह का ओरिएंटेशन हो, कार्बन से 3 H अटैच है, अभी मैंने बताया था आपको कि एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट है। तो ये बॉन्ड अभी पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है और ये बॉन्ड पूरी तरह से OH वाला फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, C+ है। तो ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, दिस इज़ द इंटरमीडिएट। ये क्या है, दिस इज़ इंटरमीडिएट। और ये कैसा ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक है, इंटरमीडिएट विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब ये इजीली क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है और ये बॉन्ड बन सकता है और हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं, यानी CH3OH और Br- अलग हो जाएगा। दिस इज़ द प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, अब यही अगर ओरिएंटेशन इस तरह का हो, मैं आपको यहीं करके बता रही हूँ, इम्प्रॉपर, उसका मतलब क्या है समझ लीजिए। यही सेम चीज़ मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है, अब इसमें ध्यान से देखिए, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। अगर सेम साइड से इस तरह का ओरिएंटेशन है कि सेम साइड से अटैक हो, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इनके बीच में क्या आ जाएगा,
रिपल्शन आ जाएगा। इस रिपल्शन की वजह से आपका जो बेसिकली यहाँ से ये बॉन्ड है ये इससे अटैच ही नहीं हो पाएगा, ये इसको रिपेल करेगा कि यहाँ से ये अटैच ही ना हो और खुद भी ब्रेक नहीं होगा। बट अगर आपका इस तरह से ओरिएंटेशन है कि वो उसके जहाँ भी आर अटैच है उसके बैक साइड में जाके अगर अटैक करता है तो यहाँ रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बॉन्ड इजीली जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, रिपल्शन की कंडीशन आ सकती है, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो बेसिकली वी हैव दीज 3 पॉइंट्स, जिसमें हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि हमने एक तो ये देखा कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, एक आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है जिसमें आपकी जो एनर्जी होगी रिएक्टेंट की, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, वो ग्रेटर होगी एक्टिवेशन एनर्जी से, और थर्ड वहाँ आपका ओरिएंटेशन जो भी होगा कॉलिजन के लिए वो इट मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन, तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ कर दें, सम कर दें इनको, मतलब कि इकट्ठा कर दें हम इनको, तो हमें क्या मिलेगा, देन रेट हमारा क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू ZAB, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, डेट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन वाला पार्ट इनटू आपका P से मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन को शो कर रही हूँ, दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये मैंने अभी आपको बताया ही है, ये क्या चीज़ है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी से। और यहाँ आपका ये क्या है, दिस इज द, ये भी लिख देते हैं, दिस इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड दिस इज वी ऑल नो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका ये P आया है जिसको हम प्रॉपर ओरिएंटेशन बोल रहे हैं, P इज ऑल्सो नोन एज द स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, यहाँ मतलब कि आपका कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना ओरिएंटेशन परफेक्ट है, वो भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो दिस इज़ द ओवरऑल थ्योरी ऑफ कॉलिजन थ्योरी, जिसमें बेसिकली ये बताया है कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मेनली रिक्वायरमेंट जो है वो कॉलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और जो उनकी एनर्जी है जो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की। सो स्टूडेंट